خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر دریائے راوی میں عام عوام کے داخلے پر پابندی اتوار کا روز شہریوں نے دریائے راوی کو تفریح کا مقام بنا لیا۔ فیملیز کا دریائے راوی پل پر شدید رش ہے۔ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے بتائیں گے توقیر اکرم۔ جی توقیر بتائیے گا۔ آج دیکھیں اس وقت دریائے راوی کی صورتحال جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی تفریحی مقام ہو، کیونکہ سیلابی صورتحال کے بعد جہاں پر پانی میں واضح طور پر کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اور اب جو پانی کا بہاؤ ہے وہ تقریباً 76,700 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے شاید شہریوں کے اندر جو ہے وہ تھوڑی خوشی کی لہر پھیلی ہے اور وہ دریائے راوی پہنچے ہیں دیکھنے کے لیے۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ تاحال پابندی دریائے راوی میں ابھی عام عوام کی لگائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین بچوں کے ساتھ جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے یہاں پہنچ رہے ہیں۔ اب یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں تو یہ اگر آپ جنگلہ دیکھیں تو ایک آدمی بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر اگر آتا ہے تو وہ اس کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ وہ دیوار ہے جو حفاظتی دیوار بنائی گئی ہے جہاں پر شہری کھڑے ہوتے ہیں۔ اب لوگ جو ہیں وہ یہاں سے پلانگ کر ادھر آتے ہیں اور اس جنگلے پہ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، اور یہ پیچھے آپ دیکھیں تا حد نگاہ لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، اور پولیس اہلکار جو ہیں وہ یہاں پر لوگوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینڈ تک جو ہے وہ لوگوں کی بڑی تعداد، لوگ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں۔ کچھ کوشش کریں گے لوگوں سے بات کرنے کے۔ السلام علیکم، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی دریائے راوی پہ پابندی ہے لوگوں کے آنے کی؟ جی نہیں، آپ یہاں پر کیا کرنے ہیں؟ اسی وزٹ کرنے آئے، دیکھنے آئے، کیا وزٹ کرنے ہیں؟ پانی دیکھنے آئے۔ پتہ ہے یہ بھی خطرہ چل رہا ہے سر پہ؟ نہیں، ابھی تو کافی پانی کا بہاؤ کم ہو گیا، اس لیے دیکھنے آئے۔ اس لیے دیکھنے آئے پانی کا بہاؤ۔ آپ کہاں سے آئے ہو؟ ضلع بہاول نگر سے۔ اتنی دور سے کیا دیکھنے ہیں؟ راوی بھی وزٹ کرنا ہے۔ ادھر میرا گھر بھی ہے ایسے گارڈن میں، ہم وہاں کے امپلائی ہیں ایسے گارڈن کے، تو کام کرتے ہیں ادھر۔ ادھر بھی گھر ہے، ادھر بھی گھر ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی منع کیا ہوا ہے انتظامیہ نے کہ یہاں پر عام عوام نہیں آ سکتی، خطرہ ابھی بھی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کیا خطرہ دیکھنے آئے ہو یا خطرہ ختم کرنے آئے ہو؟ نہیں، بالکل انشاءاللہ اس بات کا گریز کریں گے ہم، آئندہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا، پہلی دفعہ ہی انشاءاللہ۔ پہلی دفعہ ہی ہے انشاءاللہ۔ جی آپ کہاں سے آئے ہو؟ بند روڈ سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر ابھی گورنمنٹ جو ہے منع کیا ہوا ہے؟ خطرہ تو تب بھی تھا جب راوی ڈوب رہا تھا، ان کو نہیں پتا تھا ڈوبنے۔ پھر بھی دیکھنے آئے؟ دیکھنا خطرہ تب بھی تھا، انہوں نے نہیں روکا، ہم بھی نہیں ڈریں گے بھائی۔ عوام وہ روک نہیں رہے وہ، اور آپ ڈر نہیں رہے۔ یہی بات ہے، مقابلہ ڈر کے آگے جیت ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ ابھی میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، وہاں سے لوگ تیر رہے ہوتے ہیں، ہم تو پل کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ راوی میں تیر رہے ہیں، ہاں تیر رہے ہوتے ہیں آگے وہ قبرستان کے ساتھ۔ غوطہ خور ہیں، ہاں وہ غوطہ خور ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں جی یہ حالات ہیں۔ اب یہ بچے یہاں پر موجود ہیں، یہاں پہ دیکھتے ہیں، بس ادھر سے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں۔ یہ بچے، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی سیلاب کا خطرہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا؟ جی ہمیں معلوم ہے ابھی تک سیلاب کا خطرہ ختم نہیں ہوا۔ اور آپ بچی کو لے کر آئے اور آپ نے کہاں بٹھایا ہوا ہے؟ نہیں، فاصلے پہ ہیں ہم، فاصلے پہ بیٹھے ہیں۔ فاصلہ پھر بھی ہو لیکن خطرہ تو ہے۔ آپ کے پیچھے ہی ہے نا۔ ہمارے پیچھے کیوں ہے؟ کیونکہ آپ تو بہت ہی نزدیک ہیں۔ آپ ہم تو کام کر رہے ہیں نا، ہم تو لوگوں کو گائی دے رہے ہیں۔ آپ نے رش لگایا ہوا یہاں پہ، پولیس جو ہے وہ بار بار آ کے آپ لوگوں کو پیچھے کر رہی ہے، پھر بھی آ رہی ہے۔ ہم جا رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، ہم یہ جو حدود ہے نا، حدود کے باہر ہیں۔ ابھی کتنی حدود ہے؟ 6 فٹ کا فاصلہ ہے۔ یہ ان کا یہاں پہ کھڑا ہونا ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں ٹھیک، وہ کہہ رہے ہیں ہم حدود پہ جگہ ہے یہ پل ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ برج گر بھی رہے ہیں، کتنے حادثات ہو رہے ہیں، تو ہم ان لوگوں کی سیفٹی کے لیے ان کو پیچھے کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے کون سی پارکنگ بنائی ہوئی ہے جو سیر و تفریح کے لیے آ رہے ہیں۔ کیوں نہیں پیچھے ہو رہی ہے؟ یہ لوگ اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے، اللہ سے پناہ مانگنے کی بجائے، ان لوگوں نے چیز کو ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ ابھی کوئی پریشانی ہے، یہاں پہ کھڑے ہو گئے توبہ کر رہے ہیں۔ یہ کہ خدا کرے موسم بھی ٹھیک ہو، یہ پانی بھی کم ہو، جو پیچھے گھروں کو چھوڑ کر اپنے پیچھے چلے گئے ہیں وہ جلد سے اپنے گھروں میں آئے۔ آپ یہ بچی کو کیا دکھانے لے کر یہ دکھا رہے ہیں کہ جو کشتی وہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کشتی پہلے نہیں دیکھی؟ نہیں، پہلے کبھی نہیں دیکھی، پہلے نہیں دیکھی؟ نہیں کبھی نہیں دیکھی۔ وہ آج کہہ رہی وہ کشتی دیکھ رہی، وہ کرے گا، وہ کیا رہا میں وہ کشتی دیکھ رہا وہ ابھی کہہ رہی ہے میں نے کشتی دیکھی۔ دیکھ، یہ تو نظر نہیں نہ آ رہا بھائی، ذرا کیمرہ مارے۔ آپ نے کہا ذرا اٹھا کے بٹھا کے اچھی طرح سے دکھاؤ، ایسے نہ کرے، حادثہ کوئی بھی ہو جائے۔ بات ہو تو وہ ایشو کرے، یہ کوئی بات تو نہ
अच्छा, ये बात नहीं है आपकी वजह से ट्रैफिक रुक रही है, रश लगा हुआ है, वो बेचारे आगे पीछे घूम के आपको पीछे करवा रहे हैं, ये बात नहीं है। इंतजामिया ने पाबंदी लगाई हुई है, आपको पता है यहाँ पे आने से? भाई हम तो जा रहे हैं रास्ते में, अभी जा रहे हैं तो खड़े खड़े लोगों को देख रहे हैं। इनको चाहिए कि इन आवाम को साइड पे करें। और वो किस तरह करे? वो डंडा काट लो जी अपना, जरा किस तरह करे? लगाएं, कुछ चीज लगाएं, बैनर वगैरह कह रहे हैं जी हमें डंडे से मारो। इसका मतलब है कि ये जानवर लोग हैं जिनको डंडे कह रहे हैं हमें डंडा निकाले और डंडे से जी कह रहे हैं जी डंडा निकाले और डंडे से भगाओ। जब हम डंडा दिखाते हैं तो फिर ये कहते हैं हमारे से बदतमीजी करते हैं, ये करते हैं। अब वो कह रहे हैं हम डंडा आपकी बात ठीक है, आपको तो पाकिस्तानी अवाम है, इस तरह तो बाज नहीं आती। वो इस तरह बात, आप जरा मशवरा दो, जरा किस तरह बात है सर इनके काम को मशवरा दो। इधर आओ जरा, आ गया मशवरा सुनो, इस मशवरे पे अमल आप मशवरा दे दे, आपके साथ हम क्या चलो मशवरा। सर आप सख्ती करेंगे तो हम किस तरह आएगी यहाँ पे? करते तो आप फिर कहते कि यार अरेस्ट किया, एक को अरेस्ट किया अभी थोड़ी देर पहले। नहीं आप पर्चा देने के खिलाफ उनको उठाएं, एक दो बंदे को उठाएंगे तो जाहिर सी बात है। इधर खड़े हैं आप। मैं तो गुजर रहा था, मैं तो गुजरते आपको देखा, मगर देख लो। अगर हम आपको उठा लेते हैं फिर आप कहते हैं यार हमारे साथ ज्यादती कर रही है, पुलिस ज्यादती कर रही है हमारे साथ, हमारे पे FIR दे। मेहनत कर रहे हैं ना, देखो अब आप लोग। वो आपकी बात ठीक है, आपको पता है यहाँ पे बंदे इस तरह एक बंदे को देख कर रश देख कर वहाँ आ जाती है। बड़ी आफत आई हुई है, देखो कितना पानी पड़ा, लोग इस आफत को देखेंगे तो क्या करेंगे आप? ये पुलिस वालों का काम है, आगे देखेंगे या घर बैठेंगे? नहीं, घर बैठेंगे, घर बैठेंगे देखेंगे। आप तो देख नहीं सकते। आपने इस आफत को देख के क्या करना है? तौबा करनी है, तुम भी तौबा करो। ये आला मुल्क देख के तौबा करनी है, ऐसे देखा है, देख के तौबा। ये यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कुछ चीज नजर आ रही है। आप क्यों खड़े हुए? ट्रैफिक जैम क्यों? अभी भाई साहब इधर आके आओ जरा। ए बच्ची नु लेके आए ने आते जी जी गलत गल नहीं की। नहीं गलत, एक बात भी नहीं, सही बात है। मैं भी पेशावर से आया ना। आप पेशावर से ये इस वक्त दरिया रावी पर मौजूद शहरियों के साथ मौजूद थे, बातचीत कर रहे थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो यहाँ पर भीड़ ना लगाएं और अपने घरों को जाएं, अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें। तौकीर अकरम हमारे साथ है, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं जहाँ मुस्लिम टाउन में डायरेक्टर जनरल PTM इरफान अली काठिया सैलाबी सूरत हाल पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑथेंटिकेशन के बारे में अपने तमाम ज़राए से हमने कोशिश की और अभी हम इस काबिल हुए कि हम आपके साथ कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। इस दौरान चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इस चीज़ के बारे में वो पूरी तरह से छानबीन की हमने कोशिश की और लम्हा बलम्हा वो तमाम सूरत हाल से आगाही लेते रहे। अभी मैंने जैसे गुजारिश की कि इंडस वाटर कमीशन, NDM में IRSA और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट, तमाम ज़राए से ये बात आपके सामने मैं ला रहा हूँ कि ये हमने डिस्कशन के बाद ये तय हुआ कि आज ही सुबह जो ऑफिशियल चैनल्स के साथ हमारे साथ इंडियन हाई कमीशन की तरफ से जो एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हुई वो थी हाई फ्लड्स इन हरी के पॉइंट इन रिवर सतलुज। और सतलुज में आपके इल्म में ही है कि पानी के बहाव 2,53,000 क्यूसेक्स इस वक्त चल रहा है और इस जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग थी क्रॉस बॉर्डर, इसको ना सिर्फ वफाकी अदारों ने ट्रांसलेट करके हमें वापस पंजाब में PDMA को भेजा, बल्कि हमने खुद भी तमाम जो रेलेवेंट क्वार्टर्स थे सतलुज रिवर पे उनको और जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उन टेंटिकल्स को ये प्रॉपरली अलर्ट किया। लेकिन बिल्कुल सलाल डैम के बारे में और रिवर चनाब के बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल चैनल से वो शेयर ना की गई और एक हैजानी कैफियत ये आज शाम से हमारे पास ये रही और ये एक कर्टसी भी डिमांड करती थी क्योंकि इंडियन मीडिया चैनल्स में और इतना वास्ट तरीके से ये सोशल मीडिया में ये चीज़ आई कि जिसका हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि जिस तरीके से भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, ऑल्दो हम उस इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे भी अभी मुतमिन नहीं है कि जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी डिमांड करती है और इंटरनेशनल लॉ डिमांड करता है, उस तरीके से पिछली इन्फॉर्मेशन भी वो हमारे पास नहीं आ रही थी। लेकिन आज जब इंडियन मीडिया चैनल्स भी ये चीज़ें चला रहे हैं और उसके अलावा सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ का है, तो हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल चैनल से सलाल डैम के स्पिलवेज के बारे में वो दरियाए चनाब पे रिसीव होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
ऑफिशियल चैनल से ऐसी कोई चीज़ ना आ सकी, और जितने भी ये वफाकी और सूबाई अदारे हैं जिसमें मैं फिर आपसे दोबारा कहूँगा कि जिसमें इंडस वाटर कमीशन है, इरसा है, NDMA है, PMD है और पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट है, तमाम के जो इस वक्त क्राइसिस सेल हैं और उनके जो ज़राए हैं उन्होंने इसकी कंफर्मेशन की कोशिश की, और इस वक्त तक ये ज़रूर कंफर्म हो चुका हुआ है कि स्पिलवेज खोले गए हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि इन स्पिलवेज से कितना पानी हमारे पास आएगा उसके बारे में किसी किस्म की कोई कंफर्म्ड इतलात नहीं है, लेकिन चंद फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा जिसकी वजह से इस वक्त PDMA पंजाब और तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स वो जहां से चीज़ों को फोरकास्ट और फोरसी कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो सलाल डैम है ये 2,10,000 एकड़ फीट का एक डैम है, जिसकी जो टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम द मराला डैम, मराला हेडवर्क, दैट इज़ 78 किलोमीटर्स। और ये अगर इसके तमाम स्पिलवेज भी खुलें तो जितना सोशल मीडिया में चीज़ें हैं शायद उस तरह का इम्पैक्ट वो सामने नज़र नहीं आ रहा, जितने भी वफाकी और सूबाई अदारे हैं उनकी कैलकुलेशंस के मुताबिक। लेकिन क्योंकि उनकी अपर कैचमेंट्स में जम्मू में तेज़ बारिश हो रही है और ये जो 9th स्पेल है इसमें मज़ीद बारिशें अपर कैचमेंट्स में इंडियन साइड पे भी हैं, तो ये तवक्को की जा रही है कि क्योंकि ये सलाल डैम भी ऑलरेडी भर चुका हुआ है तो इससे जितना भी पानी होगा ये डाउन स्ट्रीम आएगा। इस सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि चीफ मिनिस्टर पंजाब आज शाम से जब से ये न्यूज़ ब्रेक की कुछ हमारे चैनल्स ने भी, तो लम्हा ब लम्हा PDMA क्राइसिस सेंटर से भी और हमारे साथ उन्होंने ना सिर्फ हमारी रहनुमाई की बल्कि एक एक चीज़ का वो इन्फॉर्मेशन लेती रही। इस वक्त उन्होंने ये क्लियर डायरेक्शन दी है कि बेशक ऑफिशियल चैनल से किसी किस्म की अथेंटिक खबर सलाल डैम के बारे में और मतवक्का पानी के रेले की मिकदार के बारे में वो हमें क्रॉस बॉर्डर या किसी भी चैनल से वो नहीं दी गई, जो कि एक मैं फिर कहूँगा कि इखलाकी तकाजा भी था। और कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन की अदम मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये क्लियर डायरेक्शंस दी हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये क्लियर तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को डायरेक्शंस दिए हैं कि वी हैव टू बी रेडी फॉर जो भी कोई एक ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कोई कहीं 8 लाख बताया जा रहा है, कहीं 6 लाख बताया जा रहा है। हम एक बड़े रेले के लिए दोबारा पूरी तरह से तैयार हैं। आपने आज भी देखा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद कसूर के ना सिर्फ रिलीफ कैंप्स में गई बल्कि वो जो फॉरवर्ड पोस्ट थी जहाँ पे तलवार पोस्ट जहाँ पे बाकायदा सामने वो इनंडेटेड विलेजेस मौजूद थे, उन जो इनंडेटेड विलेजेस को खुद जाके उस पानी का ना सिर्फ मुशाहिदा किया बल्कि जो वहाँ पे रियल टाइम इवैक्यूएशन इस वक्त तक जो वहाँ पे तमाम महकमे इंश्योर कर रहे हैं उस इवैक्यूएशन का भी बिल्कुल उन्होंने खुद मुशाहिदा किया। और तमाम उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने तमाम जो डिपार्टमेंट्स थे जिसमें रेस्क्यूअर्स थे और जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी सारे जो इस वक्त आवाम की ख़ास तौर पे ज़िंदगियां बचाने के लिए कोशिशां हैं, उन सब की खिदमात को भी वहाँ पे सराहा। अभी भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये क्लियरली डायरेक्ट कर दिया है और PDMA पंजाब ने उन तमाम अजला को अलर्ट कर दिया है कि खुदा न खास्ता बेशक ये हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपरली क्रॉस बॉर्डर ऑफिशियल चैनल से रिसीव नहीं हुई, लेकिन हमने इस चीज़ को सीरियस लेना है। ऑलरेडी बहुत सारे अजला और 20 लाख से ज़ायद जो अवाम है वो मुतासर हो चुकी है इस साल के इन तारीखी सैलाब और इन सैलाब से रिलेटेड तबाहकारियों से। तो इस वजह से मैं आपको इन अ नटशेल ये कंफर्म अब करूंगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने क्लियरली डायरेक्ट किया है कि इस खबर की बाकायदा ऑफिशियल चैनल से तस्दीक का इंतज़ार किए बगैर हम अपने तमाम तैयारियां मुकम्मल करें। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने इस वक्त
पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट और बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया है और हम पूरी तरह से इस एक बड़े रेले के लिए दोबारा से तैयार हैं जो अगर खुदा न खास्ता हमारे पास आता है। मैं इसके साथ साथ आपसे चंद बातें और भी डिस्कस करूंगा क्योंकि इस वक्त तीनों बड़े दरियाओं में हमें तुग़यानी का सामना है और बल्लो की जो रावी में हमने 2 दिन पहले 2,20,000 क्यूसिक्स गुजारे शाहदरा के मुकाम पर, ये अब पानी बल्लो की से गुजरता हुआ नीचे की तरफ ये जा रहा है और इस वक्त बल्लो की पे 1,86,000 क्यूसिक्स स्टेडी ट्रेंड में पानी चल रहा है। ये पानी अब अगला जो इसका प्रॉपर मुकाम है वो सदनाई हेडवर्क का है जो कि खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में बनता है और ये साहिवाल और टोबा टेक सिंह से गुजरता हुआ बिल आखिर सदनाई हेडवर्क पे ये पहुंचेगा। सदनाई हेडवर्क की टोटल कैपेसिटी 1.5 लाख क्यूसिक्स की है, लेकिन ये सबसे मैं ये भी आपसे शेयर करता चलूं कि हमारे पंजाब इरिगेशन सिस्टम का सबसे जो पुराना हेडवर्क है वो सदनाई हेडवर्क है और इसकी कम कैपेसिटी की वजह से हमें, और एक फिर ये है कि इस पानी ने, रावी के पानी ने चनाब के पानी से भी अहमदपुर सियाल के मुकाम पे मिलना है, तो हमें एक बैक वाटर इफ़ेक्ट का भी खदशा है जिसके बारे में आज से ही, क्योंकि अभी इसने अगले 24 से 36 घंटों में वहाँ पे पहुँचना है, लेकिन आप ये देखें कि पहले भी चीफ मिनिस्टर पंजाब की क़यादत में बर वक्त फैसले हुए और इसको इस वक्त पूरा झंग ख़ास तौर पर वो एक्नॉलेज भी कर रहा है कि जो पहले खुदा न खास्ता 14 और 10 में नुकसानात हुए थे वो इस दफ़ा टाइमली रिवाज ब्रिज को ब्रीच करने की वजह से और प्रॉपर रास्ता इसको देने की वजह से पानी को बड़ी आबादियां हमारी बची। तो अब हमें रावी पे, सदनाई पे, अगर इस वक्त सदनाई पे 52,000 क्यूसिक है और ये पानी ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है और अगर ये क्रिटिकल गेज वहाँ पे अटेन करता है तो क्लियर डायरेक्शंस हैं कि हमने वहाँ पे आवाम को और मेन अर्बन सेंटर्स को बचाने के लिए अगर ब्रीच नागुज़ीर हुआ तो उसको टाइमली मैनर में किया जाएगा, जिस तरीके से पहले जो इलाके हैं और अर्बन सेंटर्स हैं उनको बचाने के लिए किया गया। मुस्लिम टाउन में डायरेक्टर जनरल PTM इरफान अली काठिया सैलाबी सूरत हाल पर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं जो आपने बराह रास्त मुलाहिजा की। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन रावी किनारे पहुँच गए। मुल्हका आबादी के कब्रिस्तान में पानी दाखिल होने पर अतराफ का जायजा लिया। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन रावी किनारे दौरे पर पहुँचे और कहा कि फरखाबाद सुईगैसर रोड रावी समेत दीगर रिहायशी इलाकों में पानी आने से इलाके मुतासर हुए। 37 साल बाद दरियाए रावी में इंतहाई पानी आया है। दरियाए रावी में शदरा के मकाम से पानी की सतह में वाज़ेह कमी आ चुकी है। ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू और PTM समेत दीगर इदारों की रिलीफ फराहमी में तेजी आई है। बिलाल यासीन ने वाज़ेह किया कि मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब हुकूमत अवाम के साथ है। तमाम मुजरा और मेंबरान सूबाई असम्बली फील्ड ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर खेल और लेबर मलिक फैसल अयूब खोखर का खुदपुर गाँव का दौरा। MNA मलिक अफजल खोखर के हमरा इमदादी ट्रक के इंतजाम का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर मलिक फैसल अयूब खोखर ने सैलाब मुतासरा इलाके का दौरा किया, मकीनों से मुलाकात की और इमदाद की यकीन दहानी करवाई। मलिक फैसल खोखर ने कश्ती में सवार होकर मुतासरा इलाकों का विजिट किया। फैसल अयूब खोखर ने कहा कि इब्तदाई मरहले में 200 से ज़्यादा इमदादी पैकेट तकसीम किए जा रहे हैं। इमदादी सामान में घी, चावल और आटा समेत रोज़मर्रा की अशिया शामिल हैं। एक तैयारी होती है जो फ्लड के दरमियान में होती है और एक होती है फ्लड के बाद में। फ़िलहाल तो देखें कि हम फ्लड के दरमियान में, इस टाइम अभी पानी उतरा नहीं है, तो इस टाइम जो मसाइल हैं हमारे पास खाने पीने के अशिया के हैं, हमारे पास शेल्टर के हैं, इस तमाम के लिए तो हुकूमत पंजाब कोशिश कर रही है। लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि ऐसी भी इलाके हैं, ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर पहुँचना इस टाइम बहुत मुश्किल हुआ है। इस टाइम जहाँ पर आप खड़े हैं आगे सड़क नहीं गुजरी, आगे इस टाइम हमने कश्ती में हम गए हैं और देखें कि ये हमारे अनसंग हीरोज़ हैं। इस टाइम हम वज़ीरों का, MNA MPs का तो नाम ले रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये हीरो असल में मैं नहीं हूँ। हीरो अकबर जैसे लोग हैं, यासिर जैसे लोग हैं जो 24/7 चाह रहे हैं, 8 घंटे नहीं, ये 18 घंटे चाह रहे हैं, 20 घंटे चाह रहे हैं। असल में इनको हौसले बुलंद करने वाली बात है कि देखें कि आपके फैमिली को मूव कर रहे हैं, इनको लेके आ रहे हैं, इंसानों के अलावा जानवरों को भी लेके आ रहे हैं।
थीम पार्क सोसाइटी में सैलाबी सूरत हाल है। हज़ारों रिहायशी मुतासर हुए। MP मलिक शहबाज अली खोखर ने सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती कायम कर दी है। थीम पार्क सोसाइटी में MP मलिक शहबाज अली खोखर के ज़रिए तमाम 45 कैंप्स पर मुश्तमिल खैमा बस्ती कायम की गई है। चीफ कोऑर्डिनेटर PP 162 राना साकिब ने कैंप्स का जायजा लिया। PSO मौसम अली, मलिक अदील अनवर, मियाँ फहद फारूक, हाजी रमजान, बिलाल जट, हाफिज मुदस्सर, मियाँ नसीर समेत दीगर मौजूद थे। सैलाब मुतासरीन को टेंट, खाने पीने की अशिया, भी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुतासरीन ने MP मलिक शहबाज अली खोखर से इजहार तशक्कुर किया। MPA बीबी वडेरी ने थीम पार्क सोसाइटी और मुल्हका इलाकों में सैलाब मुतासरीन में खाने पीने की अशिया तकसीम की। MPA बीबी वडेरी ने मोहलनवाल और चुंग का दौरा किया। थीम पार्क सोसाइटी और मुल्हका इलाकों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। सैलाब मुतासरीन में खाने पीने की अशिया तकसीम की। जमशेद तूर, मियाँ यूसुफ चौधरी, फैजान समेत दीगर हमरा थे। अशिया के हसूल पर सैलाब मुतासरीन ने शुक्रिया अदा किया। MPA बीबी वडेरी ने कहा कि मुश्किल वक्त में मुतासरीन का साथ देना हमारा फ़र्ज है। मानसून बारिशों, सैलाबी पानी से मुतासरा इलाकों में बीमारियां तेजी से फैलने लगी हैं। ज़िला इंतजामिया और सोशल सिक्योरिटी हुकाम ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए हैं। सैलाब से मुतासरा नशेबी इलाकों में जमा पानी बीमारियों का बायस बनने लगा। मच्छरों की अफजाइश से डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं। आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैज़ा, इसहाल और जल्दी बीमारियों में इजाफा हो रहा है। मुतासरा आबादियों में बिलखसूस बच्चों और मुअम्मर अफराद में बुखार, नज़ला और सांस की शिकायत आम हो गई। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली की हिदायत पर आरजी मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। MS सोशल सिक्योरिटी शाहदरा मजहराबाद ने मरीजों का खुद मुआयना किया, रिलीफ इकदाम का जायजा लिया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को उबला हुआ पानी पीने, खाने पीने में एहतियात बरतने की हिदायत की। चेयरमैन अल करीम सिटी नज़ीर अहमद चौहान का फ्लड कैंप्स का दौरा, मुतासरीन को खाना मुहैया किया। साबिक MPA नज़ीर अहमद चौहान ने मुल्तान रोड पर वाक़या मुतासरीन सैलाब की खैमा बस्ती का दौरा किया। मुतासरीन से मुलाकात की, खाना तकसीम किया। नज़ीर अहमद चौहान ने कहा कि मुतासरीन सैलाब की मदद हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की सख्त हिदायत हैं कि मुतासरीन की ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। आइंदा आने वाले दिनों में सैलाब मुतासरीन और वबाई अमराज से भी नाबुर्दास्मा हो सकते हैं। इस सिलसिले में अस्पतालों में इमरजेंसी की सूरत हाल होगी। वज़ीर आला 1-2 रोज़ में लाए अमल से आगाह करेंगी। मुतासरीन सैलाब की खैमा बस्ती मुल्तान रोड चुंग से मुल्हका ग्राउंड में कायम कर दी गई है। मुख्तलिफ फलाही तंजीमें भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद में पेश हैं। अल खिदमत फाउंडेशन और मरकजी मुस्लिम लीग के तहत खैमे लगाए गए हैं। मुख्तलिफ फलाही जमातों की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती कायम की गई है। चुंग मुल्तान रोड पर अल खिदमत फाउंडेशन और मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए तमाम खैमा बस्ती कायम की गई है। थीम पार्क और मोहलनवाल के सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद खैमा बस्ती में मुकीम है, जहाँ 250 से ज़ायद खैमे मरकजी मुस्लिम लीग के तहत लगाए गए हैं। खैमा बस्ती में 600 से ज़ायद अफराद मुकीम हैं। मुतासरीन में ख़ातीन, बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। फर्रुखाबाद में सैलाबी पानी की सतह कम होना शुरू हो गई है। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप लगाया गया है। शेल्टर, खाना, अद्वियात फराहम की जा रही हैं। फर्रुखाबाद में सैलाबी पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। इलाके के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप लगाया गया है। SDEO पैरा मॉडल टाउन सैयद वसीम अब्बास निगरानी कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को शेल्टर मुहैया किया गया है। 3 वक्त का खाना भी दिया जा रहा है। अद्वियात के लिए मरीजों को मेडिकल की सहूलत मुहैया की जा रही है। 50 से ज़ायद खानदान को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह कम हो रही है। घरों से पानी निकल रहा है। जलों में फ्रेंड्स ऑफ फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात कमल लियाकत ने सदारत की। कॉन्फ्रेंस में प्लांट फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 50,869 एकड़ पर 5 करोड़ 10 लाख दरख्त लगाने की जामे मनसूबाबंदी की गई। कॉन्फ्रेंस में महकमा जंगलात ने मंसूबों से शुरा को आगाह किया। CM एग्रो फॉरेस्ट्री मुहिम के तहत 3,790 एकड़ पर फॉरेस्ट वेस्ट लैंड पर 13,75,000 दरख्तों की शजरकारी की जा रही है। पंजाब के नहरी रकबे पर 10,223 एवेन्यू मील पर 50 लाख दरख्तों की शजरकारी जारी है। माहौलियाती सेहत के लिए वाइल्डलाइफ नेटवर्क, डिजिटल कैमरे, GSS डिवाइसेस और CCTV कैमरे मुहैया किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी माहौलियात और जंगलात कमल लियाकत का कहना था, आज माहौल दोस्त लोग एक छत तले इकट्ठे हैं। जंगलाती कामों के लिए जदीद
मजीद मशीनरी खरीद ली है। शजरकारी और फॉरेस्ट्री ऑपरेशन के अमल को मजीद तेज कर दिया गया है। पंजाब गवर्नमेंट, इस वक्त सीएम पंजाब, आपकी मिनिस्टर फॉरेस्ट, हम सब लोग अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए इस वक्त हम लोग जंगल की बका के लिए, जंगल की बेहतरी के लिए, अपने माहौल की दोस्त होने के लिए हम सब एक जंग लड़ रहे हैं और वो उसमें हम तब कामयाब होंगे जब आप सब हमारा साथ देंगे। डीजी फॉरेस्ट असफर ज़िया का कहना था, पंजाब में दरख्तों की डिजिटल नंबरशुमारी और GIS पर मबनी सर्वे का आगाज हो चुका। सूबे भर में 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए 104 फॉरेस्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स का क़याम जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत में नुमाया इजाफा है। कॉन्फ्रेंस का टोटल मकसद ये है कि कम्युनिटी के साथ मिलके हम लोग आगे बढ़ें, फॉरेस्टेशन करें, और जो लोग सिविल सेक्टर के अंदर, सिविल सोसाइटी में बड़े नाम हैं जो ये प्लांटेशन कैंपेन चला रहे हैं, शजरकारी कर रहे हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट भी करें। शुरा की जानिब से फ्रेंड ऑफ फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया गया। कैमरामैन एहसन के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। PC होटल में ई-टैप्स के तहत ई-कॉमर्स लीडरशिप समिट, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। ई-कॉमर्स चैलेंजेस और मौक़ों बारे माहिरीन का इज़हार ख्याल। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। PC होटल में ई-टैप्स के तहत ई-कॉमर्स लीडरशिप समिट के दौरान ई-टैप्स ऐप की लॉन्चिंग की गई। तकरीब में मुस्तफ़ा अहमद, अवाम, अवाज तस्ईद और तलहा महमूद ने ख्यालात का इज़हार किया। डॉक्टर नाजिर और आयशा नासिर ने ख़ातीन एंटरप्रेन्योर्स के तजुर्बात शेयर किए। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स के मुस्तक़बिल पर मुबाहसा भी पैनल डिस्कशन का हिस्सा बनाया गया। सिद्रा उमर, सरफराज इकबाल, ज़ोहेब अरशद और तलहा मकसूद शरीक हुए। डॉक्टर अफगान कैसर, उमर मुबीन ने अहम नुकात उजागर किए। मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था, ई-कॉमर्स और फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री तेज़ी से तरक्की कर रही है। कार्डिफ मेड इंस्टीट्यूट की 8वीं मेडिकल ग्रेजुएट कॉन्वोकेशन की तकरीब, CCO कासिम अली शाह फाउंडेशन उसामा ताइब ने खसूसी शिरकत की। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट आसिफ महमूद, CCO इंस्टीट्यूट आसिफ कमाल, डॉक्टर वसीमुल्लाह शाहीन शरीक हुए। 100 तलबा ग्रेजुएट हुए। ग्रेजुएट होने वाले तलबा में डिग्रियाँ तकसीम की गईं। मेहमानों को भी शील्ड से नवाजा गया। इंस्टीट्यूट के असातिज़ा को भी शील्ड से नवाजा गया। पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन के इंतखाबात मुतनाज़ हो गए। पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर असगर गुल की वजाहत। बतौर सीनियर नायब सदर पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन के इजलास में शिरकत की। असगर गुल की जानिब से कहा कि इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे हाफिज शहबाज। जी हाफिज शहबाज। पे पंजाब ओलंपिक हाउस में हुआ था, जिसके बाद पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन के सदर जो हैं उन्होंने इजलास में मेजर जनरल मोहम्मद अकरम सही का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अर्शद नदीम की बहुत ज़्यादा सरपरस्ती की। उसके साथ साथ दीगर अमूर पर उन्होंने ब्रीफिंग दी और इजलास में इंतखाबी अमल भी करवाया गया था। इंतखाबी अमल के बाद जो सीनियर नायब सदर हैं असगर गिल, उनकी जानिब से वजाहत की गई है कि उन्होंने इजलास में कहा था कि इजलास गैर आईनी है, क्योंकि कल सिर्फ फेडरेशन को बताया गया था। साथ साथ राय से ये मालूम हुआ है कि कल ही पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिख के दिए आगाह किया था कि आज वो इजलास इंतखाबात करवाने जा रहे हैं, जिसपे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने लेटर के जरिए ही आगाह किया था पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन को कि वो इंतखाबात का अमल जो शुरू करवाएं, लेकिन इसको आईनी तौर पर करवाया जाए और आईनी तौर पे इंतखाबात का लिए नोटिस जो है 21 रोज पहले जारी होना जरूरी है। और उसके साथ साथ जो उम्मीदवार हैं उनका 7 रोज कबल उनका नाम जो है वो बताया जाना चाहिए कि कौन कौन उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके साथ साथ लेटर में लिखा गया कि पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन के सदर सलमान इकबाल भट्ट जो हैं इस वक्त। जी हाफिज शहबाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से कल वक्त इतना है।